Good morning, all of you. You all are welcome in the e-learning classes of the Sacred Heart School. Today in this video, we will discuss about the naming of organic compound in which benzene is present as a basic component. When the benzene is attached in the organic compound, the compound known as benzenoids compounds. So, in this video, we will discuss about the nomenclature of all type of the benzene derivatives, and these derivatives may be the nuclear substituted benzene compounds as well as the side chain substituted benzene compounds. So one by one we will discuss the naming of such type of the organic compounds. Some common examples I am taking here for the nomenclature of the benzene compounds. In this category, the first example is toluene. And in this toluene, the benzene, from this benzene, by the substitution of one H atom, the addition of CH3 or any side chain takes place. This type of the compounds known as toluene compounds. Now, the first compound is toluene. In this toluene, the CH3 group is attached to the benzene. As in the beginning of this video, I have told you that there are two types of the benzene compounds. One type of the compounds known as nuclear substituted, and the second type of the compounds known as side chain substituted. So whenever any functional group is attached directly to the benzene ring, and this type of the compounds known as nuclear substituted. On the other hand, if any functional group is attached, the side chain attached to the benzene ring, the compound known as, that is the side chain substituted. So in this account, the first compound that I have explained here, this is the methyl group is present by the substitution of one H from this benzene, and this compound known as toluene. आप इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो. The second compound. In this compound, the any H atom of the benzene is replaced by the OH. जब आप किसी OH ग्रुप से एक H का रिप्लेसमेंट बेंजीन से कर देते हो, this compound known as hydroxybenzene, या simply you can say phenol, and their boiling point is also mentioned here. In the same way, if the H atom of the benzene ring is replaced by the ammonia and ये ammonium group, this is known as aniline group. So this is aniline. This compound known as acetophenone. This is ketone, और इस कीटोन की एक साइड में आपने लगा दिया CH3 and इस कीटोन के वन साइड में लगा दिया this benzene ring. तो this is methyl, this is phenyl, और this is ketone. And common name of this compound is acetophenone because this compound having the ketone group is a basic component of the structure. तो इन दिस वे ये सारे के सारे कंपाउंड जिस कैटेगरी में आएंगे आप उसको न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स के फॉर्म में जानते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट नेमिंग पार्ट, देयर नेक्स्ट कंपाउंड इज दैट इज द क्यूमिन. इस क्यूमिन के अंदर बेंजीन रिंग से एक साइड चेन अटैच है और साइड चेन का एक H एटम रिप्लेस कर दिया आपने CH3 से. दिस रिजल्टेंट कंपाउंड नोन एज क्यूमिन. इन द क्लास 12 you will discuss about this cumin for the manufacturing of the carboxylic acid. In the same way, if you will take the next compound, one H atom of the benzene is replaced by the aldehyde group, and this resultant compound obtained known as benzaldehyde. So this compound known as benzaldehyde. तो ये benzaldehyde this known for their characteristic smell, और इस benzaldehyde में आपने यहाँ पर ऐड कर दिया SO2H, मतलब this is the COOH. तो this is the benzoic acid. And this benzoic acid is widely used as a preservative. तो जितने भी आपके एडिबल कंपाउंड्स होते हैं उन सभी एडिबल कंपाउंड्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको इस बेंजोइक एसिड की जरूर मिलेगी. ठीक है, इसी का एक कंपाउंड आप डराइव करके बनाते हो जिसको आप कहते हैं सोडियम बेंजोएट. दिस बेंजोइक एसिड एंड दिस सोडियम बेंजोएट आर द कॉमन टाइप ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स जो हम हर तरह के एडिबल फूड स्टफ के अंदर ऐड करते हैं. तो दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज अनदर डेरिवेटिव जो कि एक H एटम बेंजीन से रिप्लेस करके
हम COOH को ऐड करके इस बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशंस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड इज दिस इज CN. और इस CN का मतलब दिस इज साइनाइड ग्रुप. और जब किसी भी बेंजीन कंपाउंड्स के अंदर, जब किसी बेंजीन के अंदर एक H एटम का रिप्लेसमेंट आप नाइट्राइल ग्रुप से कर देते हो, तो नाइट्राइल के रिप्लेसमेंट के बाद जो कंपाउंड बनेगा आप उसको बेंजीन साइनाइड या सिंपली बेंजीन नाइट्राइल के नाम से जानोगे. अगर हम इस पोजीशंस के अंदर इस N को रिवर्स कर दें, दिस इज बेंजीन रिंग, N आ गया पहले, डबल बॉन्ड C बाद में आया, तो दिस टाइप कंपाउंड्स नोन एज दिस इज बेंजीन रिंग NC. NC का मतलब दिस इज आइसोनाइट्राइल. यू नो दिस CN का जो प्रॉपर्टी होती है ये एक एम्बीडेंट ग्रुप होता है. और इस एम्बीडेंट का मतलब होता है बेसिकली जिसकी दो साइड से रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी हो. तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम द कार्बन साइड, इवन द रिएक्शन इज पॉसिबल फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड. तो दोनों साइड से रिएक्शन की इक्वल पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है. तो इन दिस वे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको आप बोलेंगे बेंजीन साइनाइड और यू कैन से बेंजीन नाइट्राइल. और जब N को पहले ऐड करके C को बाद में ऐड करेंगे तो आप इसी कंपाउंड को बोलेंगे बेंजीन नाइट्राइल. तो दीज आर द सम ऑफ द न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक ऐड कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर एक CH3 है इसी कंपाउंड की तरह, दूसरे पर भी आपने एक CH3 लगा दिया, ये भी टॉलुइन की तरह आपने CH3 लगा दिया. तो दिस कंपाउंड नोन एज 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज जाइलीन. और इसी जाइलीन का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है आप उसको जाइलॉल बोलते हो. एंड दिस जाइलॉल इज वाइडली यूज्ड इन द स्टेनिंग टेक्निक whenever the permanent slide is prepared in the biology, and that time this xylol is used in the steps of the permanent slide preparation. तो slide preparations के अंदर xylol जो होता है वो इसी xylene का एक aqueous solution है. तो in this way xylene is there. तो why this compound known as ortho? तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे जस्ट नेक्स्ट पोजीशन मे बी दिस वन एंड मे बी दिस वन, एंड दीज टू रिलेटिव पोजीशंस नोन एज ऑर्थो पोजीशन. एंड नेक्स्ट कंपाउंड दिस नोन एज स्टाइरीन. इस स्टाइरीन के अंदर दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर एक बेंजीन रिंग को ऐड कर दिया तो आप इसको विनाइल फिनाइल भी बोल सकते हैं या फिनाइल विनाइल भी कह सकते हैं. और कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्टाइरीन. और दिस स्टाइरीन इज वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रबर. तो रबर की सिंथेसिस के लिए हम इस स्टाइरीन का प्रिपरेशंस बहुत बड़े स्केल पे करते चले आ रहे हैं. तो रबर प्रिपरेशंस कैन बी मेड इन अ फॉर्म ऑफ द बूना S. एक रबर आती है आपकी बूना N. तो उन रबर की प्रिपरेशंस में स्टाइरीन इज वाइडली यूज्ड इन अ बेसिक कंपोनेंट एज अ रॉ मटेरियल. तो रबर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो स्टाइरीन होता है. तो दीज आर द सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वी हैव टू अटैच्ड द functional group directly to the benzene ring. Few more examples, that is mono substituted benzene compounds. In this type of the compounds the one H atom is replaced by the any of the group. इसे बोलते हैं कि एक H का रिप्लेसमेंट जैसे कि हाइड्रोकार्बन या किसी और ग्रुप से, तो आप इस कंपाउंड्स को पेरेंट चेन के नाम से बोलेंगे. तो दिस कंपाउंड बिकम C6H5Br. दिस इज ब्रोमोबेंजीन. यहाँ पर C6H5NO2 आपने अटैच कर, दिस इज नाइट्रोबेंजीन. और यहाँ पर आपने C6H5CH2CH2CH3 आप इसको प्रोपाइल बेंजीन के नाम से आएंगे. तो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड इन विच द सब्सटीट्यूशन ऑफ ओनली वन H atom takes place from the benzene ring. This type of the compounds known as mono-substituted benzene compounds. So this is the mono-substituted benzene compounds जिसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है. तो इन दिस वे ये सारे के सारे कंपाउंड्स आपके बेसिकली प्रेजेंट होते हैं जो आपके यहाँ पर इंडिकेट किए. तो दिस कंपाउंड्स नोन एज mono-substituted compounds. Is it clear? Next, very next category of the compound is, this is the arenes, are alkyl substituted compound. What do you mean by this aryl compounds, arene compounds? If carbon substituents or the number is less than 6,
then the arene is named as the alkyl substituted benzene. If the carbon substituents number is more than 6, then the arene is named as the phenyl substituted compound. आपको किस बात का ध्यान रखना है, अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड जो भी कंपोनेंट है उसमें कार्बन का नंबर 6 से कम है तो आप उसे क्या बोलेंगे, एल्काइल सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, और अगर नंबर 6 से ज़्यादा है तो आप उसको बोलेंगे फिनाइल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स. तो इन दिस वे दीज आर सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. तो दिस कंपाउंड इज प्रोपाइल बेंजीन, और दूसरे कंपाउंड में कार्बन का नंबर 6 से कम है तो आप इसको फिनाइल. तो यहाँ पर बेंजीन रिंग साइड चेन की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, like as this CH3, like as this CH3, we are treating this benzene ring as a side chain. और कंपाउंड आपकी साइड चेन का डेरिवेटिव कहलाएगा. तो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड्स नोन एज, दिस इज द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की या बेंजीन कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है. इस कंपाउंड्स के अंदर भी आपने प्रोपाइल बेंजीन बोला क्योंकि प्रोपाइल के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 है और बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 6 है. तो जब ज़्यादा कार्बन बेंजीन के अंदर है तो पेरेंट चेन बेंजीन को मानेंगे एंड वर्ड रूट इज टेकन एज बेंजीन, और इस प्रोपाइल के फॉर्म में आप इस कंपाउंड को परमानेंटली यहाँ पर ऐड करोगे. तो दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ द बेंजीन कंपाउंड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हेयर. और इन कंपाउंड्स की अपनी ओन सिग्निफिकेंस होती है. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड्स, दिस इज फिनाइल. फिनाइल का मतलब C6H5. जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग का ट्रीटमेंट एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह होता है तो आप उसको फिनाइल, जिसको हम सिंपली PH से इंडिकेट करते हैं, कैन ऑल्सो बी पीस ऑफ द C6H5. जैसे कि बेंजाइल. बेंजाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कंपाउंड पहले टोलुइन था, इस टोलुइन में से मैंने साइड चेन से एक H एटम का रिप्लेसमेंट कर दिया. तो एक H एटम के रिप्लेसमेंट के बाद जो पूरा कंपोनेंट बचेगा, दिस इज C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2, and this whole component known as benzyl group, and this benzyl group may be present on any of the other component of the aliphatic or as well as aromatic compound. और अगर हम डायरेक्टली चेन को यहाँ से तोड़ देते हैं और जो ये कंपाउंड बनेगा तो आप इसको फिनाइल ग्रुप बोलेंगे. तो इन दिस वे नेमिंग पार्ट में आपको इस सेगमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि व्हेन दिस बेंजीन इज ट्रीटेड एज बेंजाइल और व्हेन दिस बेंजीन इज ट्रीटेड एज फिनाइल. तो फिनाइल कब बोलेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड व्हेन दिस कंपोनेंट इज टेकन एज बेंजाइल तो आपको इस बात का भी पर्टिकुलरली ध्यान लेके चलना है. तो इन दिस वे इन कंपाउंड्स की सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई एम टेकिंग the next category of the compounds. This is the di-substituted benzene compounds. In such type of the compounds, the compound can be classified in 3 category. Ortho positions, दो पास पास के कार्बन कोई भी बेंजीन रिंग के अंदर आप उसको ऑर्थो बोलते हैं. मेटा पोजिशन, एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन, 1 कार्बन 3rd कार्बन. पैरा पोजिशंस, दो कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पोजिशन आप उसको पैरा पोजिशंस बोलते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल्स. इन दिस एग्जांपल्स वी आर एडिंग 1 Cl एंड वी आर आल्सो एडिंग 1 Cl एट दिस पोजीशन. तो दोनों पोजिशंस पे आपने Cl को ऐड किया हुआ है एंड दीज 2 Cl आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट पोजीशन. सो दीज 2 पोजिशंस कलेक्टिवली नोन एज, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, और द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और यू कैन से ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. यहाँ पर भी मैंने एक CH3 को ले लिया और CH3 के बाद एक कार्बन को छोड़ के अगले CH3 को ऐड किया है. तो आप इसको 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं या फिर आप इसको मेटाजाइलिन बोलेंगे. और इन अ सेम वे दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड ग्रुप, और इस एल्डिहाइड में दो कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पर मैंने एक Cl को अटैच किया है. तो दिस पोजिशन नोन एज पैरा पोजिशन. तो in this way this is a very long class of the compound which may be ortho, which may be para, which may be meta. तो in this way ortho, meta, पूरा para position जितने कंपाउंड मैंने इनिशियली इस वीडियो में डिस्कस किए थे उन सभी कंपाउंड्स के लिए ये तीनों डेरिवेटिव पॉसिबल्स हैं. सम कंपाउंड्स कैन फॉर्म द ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड, सम कंपाउंड्स कैन फॉर्म्स
the meta compound. In this way, ortho meta para becomes the very important category of the organic compound. In this way, the naming segment you have to remember, और इन नेमिंग सेगमेंट के बेस पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ध्यान रखना है. नाउ जितना पार्ट मैंने आपको बताया ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशंस, तो हाउ दिस ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशंस कैन बी इंडिकेटेड. तो वन डायग्राम्स के थ्रू एक्स इज अ फंक्शनल ग्रुप इन द फर्स्ट डायग्राम. These two positions are ortho position, these two positions are meta position, and this position is a para position. तो ortho meta para are the different relative positions of the organic compound. और इन सब एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अगर मैं ब्रोमीन को ऐड करता हूँ, इफ़ यू आर एडिंग द ब्रोमीन इन दिस टोलुइन, तो यू कैन गेट दिस ब्रोमीन एट दिस ऑर्थो और एज वेल एज दिस मेटा पोजिशन. तो इन दिस वे CH3 की प्रेजेंस में जो ब्रोमिनेशन होगा वो या तो ऑर्थो पर होगा या मेटा पर होगा. ऑर्थो पर होगा, पैरा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा. व्हाई इट्स सो? एंड दिस सेगमेंट वी विल डिस्कस जब हम आपको बेसिक इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे. दैट टाइम आपको इन सारे इफेक्ट का बेसिक ध्यान रखना है कि कब आपका कंपाउंड ऑर्थो पोजिशंस पे आएगा, कब आपका कंपाउंड मेटा पोजिशंस पे आएगा, या फिर कब आपका कंपाउंड पैरा पोजिशंस को इंडिकेट करता है. तो इन दिस वे all these segment becomes very important for the naming segment of the organic compound. This is the third category of the naming, multi-substituted compound. You can see these examples. In these examples, the substitution of the organic compound is possible. This is more than one position, more than two position. This is Br, this is CH3, this is CH3. तो थ्री रिलेवेंट पोजिशंस, तो इसे बोलते हैं मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यू कैन गिव द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड कि कौन सा कंपोनेंट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाएगा और कौन सा कंपोनेंट आपका साइड चेन कहलाएगा. अनदर एग्जांपल, द 2 नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट देयर एंड 1 Cl प्रेजेंट देयर, एंड दिस इज 2 नाइट्रो ग्रुप एंड देयर 3 नाइट्रो ग्रुप इज देयर, और दिस इज 1 CH3. तो दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो जिसको आप TNT बोलते हैं. एंड दिस TNT इज वाइडली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सप्लोसिव्स. तो बहुत सारे डायनामाइट्स या एक्सप्लोसिव्स को बनाने के लिए हम इस TNT को बहुत बड़े स्केल पे यूज करते आ रहे हैं. तो इन दिस वे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मल्टी सब्सटीट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स कब कहना है, इस बात का सेगमेंट आपको इन एग्जाम्पल्स में ध्यान रखना है. तो ओवरऑल all six position of the benzene ring can undergoes the substitution. और इन सब्सटीट्यूशंस के अलावा आपको मालूम है कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो एडिशन रिएक्शंस की भी इक्वल पॉसिबिलिटी हो सकती है. जब सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है तो आपका एडिशन भी बेंजीन के अंदर पॉसिबल है. इन दिस वे द सब्सटीट्यूशन पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. Some examples. Try to give the name according to your requirement and tell your answers. Okay. For these examples, the IUPAC names of the compound is given, and with the help of these examples, try to draw the structures of the organic compound. और जब आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स तो आप उसके नेम को टैली करेंगे. तो वर्ड रूट पहले फाइंड करिएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ड्रॉ करना स्ट्रक्चर्स को, एंड दिस 2 फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चन इज पॉसिबल व्हेन द नेमिंग सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन टू यू.